ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਆਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੁੜੋ ਜੀ ਜੁੜੋ ਇਕਾਗਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀਓ। जियो 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 सारे जपो। विचार बंद करो, केवल जपो। वाहिगुरु जी डंडौत बंदन अनकबार। हथ जोड़ो सारे, सिर नवाओ साहिब गुरु ग्रंथ साहब अगे ते सारे पढ़ो। डंडौत बंदन अनकबार सर्ब कला समरथ। डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। नानक काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव। नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरदेव। कर प्रसाद गुरदेव बिनस जाए अहमेव। अगम अगोचर सच साहिब मेरा। नानक बोले बुलाया तेरा। नानक बोले बुलाया तेरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गज वज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो सुख मोको संत बतावो। सो सुख मोको संत बतावो। सो सुख पुछो आ जान के। संत गुरु ग्रंथ साहब नूं मन के सुरत विच लियाओ। किन्नू जी? पूर्ण संत मन के गुरु ग्रंथ साहब नूं ते आखो हे संत जी मैनू कोई वो सुख दसो
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। हे ਸੰਤ ਜੀ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ, ਪਕੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪਕੰਬਰ, ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਿਆਂ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਕੌਣ ਆ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪੜੋ। ਸੋ ਸੁਖ ਮੋਹ ਕੋ ਸੰਤ ਬਤਾਵੋ, ਸੋ ਸੁਖ ਮੋਹ ਕੋ ਸੰਤ ਬਤਾਵੋ, ਸੋ ਸੁਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਝੈ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੋ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਝੈ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੋ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਝੈ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੋ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਝੈ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੋ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੋ ਸੁਖ ਮੋਹ ਕੋ ਸੰਤ ਬਤਾਵੋ, ਸੋ ਸੁਖ ਮੋਹ ਕੋ ਸੰਤ ਬਤਾਵੋ, ਸੋ ਸੁਖ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ? ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੈ ਸਤਲੁਜ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆਈ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸੋ ਸੁਖ ਮੋਹ ਕੋ ਸੰਤ ਬਤਾਵੋ, ਸੋ ਸੁਖ ਮੋਹ ਕੋ ਸੰਤ ਬਤਾਵੋ, ਸੋ ਸੁਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਝੈ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੋ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਝੈ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੋ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਿਓ, ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਖੋਪਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਮਰ ਕੂੜਾ ਤੇ ਕਰਕਟ ਭਰੇ, ਕੂੜਾ ਤੇ ਕਰਕਟ ਭਰੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਕੀ ਭਲਾ ਜੋ ਨਿੰਦਾ, ਜੋ ਚੁਗਲੀ, ਜੋ ਦੁਐਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਂਡਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਐਤ ਹੈ, ਈਗੋ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ। ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਵੀ ਰੋਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਚੁਗਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਈਰਖਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਵੇਖੋ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਤੱਕ ਉਤਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਉਧਰ ਤਿਸ ਮਾਇਆ, ਜਿਸ ਉਧਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਧਰ ਚੋਂ ਆਇਆ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਐਤ ਨੇ ਘੇਰਿਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੋਗੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਇਹ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਕੌਣ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੋਪਰੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਦੁਐਤ ਹੈ।
जे तुसी बह के अज गुरु नानक पातशाह की गोद विच बह के कोई एक शब्द सुन जो, किन्ने सारे दसो ना, जे एक गुर की सिख सुनी, मैं नहीं कहता तुसी कथा सारी सुन के जाओ, कोई एक गल गुरु नानक दी सुन लो ते खोपरी आ भांडा है बहुत छोटा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक गल नहीं, इनू नक्को नक भर देना है। जे किते मेरी ओ धीओ मेरे वीरो गुरु दी एक सिख दा मतलब हुंदा सिक्ख्या, सिख दा मतलब सिख नहीं, सिख मीन जे गुरु दी कोई एक सिक्ख्या सुन जाओगे ते आ भांडा नक्को नक भर जूगा। जे तुसी भरना आए हो ते पहली गल आपां नूं दास ने पहलों बेनती की, फैसला करना हो भी असीं अज सुनना है, गुरु की गल सुनना है। सारे विचार बंद के सुनिया कदों जाता है, जदों अंदरों चुप हो जाइए। सुनिया जदों अंदरों अंदर दा शोर मुक्के ते बाहरली गल सुनी दी। आखो वाहिगुरू। संगत आई काबल तो, ते सारी रात ढोलकी ते छाणिया ना पढ़ते रहे। मैं कल दा पढ़ा रहा शब्द, परसों दा शुरू होया। सो सुख मोह को संत बतावो, सो सुख मोह को संत बतावो, सो भर के बोलो भला। तृष्णा बूझे मन त्रिपतावो, तृष्णा बूझे मन त्रिपतावो, तृष्णा उथे आया है, दर्शन करो। एक शब्द आया तृष्णा, ते गुरबाणी ते तृष्णा नूं रोग दस्या है। ये तृष्णा वड्डा, सारे बोलो, ते लगी सारियां नूं। आखो वाहिगुरू। ये रोग ही नहीं कला आख्या, नाल वड्डा लिखिया भी वड्डा रोग है की। ते रात दे दीवान च कहा सी, जिस बंदे नूं ये रोग लगा उहदियां दो निशानियां ने। मेरे पिछे कदी तुरनगे लोग, अज इहदे पिछे तुरे आउंदे ने, ते किसे दी अर्थी जांदी वेख के ते हथ जोड़ के ना ते केवल राम नाम सत कह के ना छुट जाओ, उदों कुछ सोचियो। किसी नूं अर्थी च पए नूं वेख के जांदे नूं कुछ सोचियो। की सोचियो भी अज ए आ, जो आया सो चलसी, सब कोई आई वारी है, जिसके जी प्राण है, क्यों क्यों साहिब मनो वसारी है। देखे कीता अपना धर कच्ची पक्की सारी है, धर ये गल नोट करियो। जदों तुसां रब दे घर जाना है ना, ते तुहाडी जोत, हर बंदा कहण दिया भी मैं जो कीता चंगा कीता है। इत्थे कोई बंदा अपने आप नूं गलत नहीं कहंदा। इस तरह ही है जी, हर बंदा कहंदा मेरा नितनेम ठीक है, मेरा अभ्यास ठीक है, मेरा जीवन ठीक है। हर बंदा जो आखिया मैं ठीक किया है। मेरा साहब पता की कहता है, देखे कीता अपना धर कच्ची पक्की सारी है। जदों तुसी जांदे हो दरगाह दे विच ते रब तुहाडी रोटी नूं अपने हथ ते रख के वेंदा है, कच्ची ते पक्की दोवां दी रोटी वेख के फिर फैसला रब करदा है। तू कौन ना फैसला करने वाला भी तेरा सिमरन चंगा है, तेरा अभ्यास चंगा, तू नहीं फैसला कर सकता। अपने आप नूं ते सारे कहणगे मियाँ मिठू। मेरा बाबा कहंदा उन्हें हथ ते रख के धर मैंने हथ ते रख के, कच्ची पक्की सारी है, जिसके जी प्राण है, क्यों साहिब मनो। मेरे साहब जी कहंदे भी जदों तुसी किसी दी अर्थी जांदी वेंदे हो, हथ जोड़ के बेनती आ, इनू पॉजिटिव समझना भी जिहड़ा गुरु की गल गुरुद्वारे सुनागे मेरे भले लई आ। किसी दी अर्थी जांदी वेख के कहना मेरी जा रही। इस तरह ही कल नूं मेरे मगर पिछे लोग तुरनगे
सारे एक मकान तक छड्ड के सारे मुड़ जाणगे। अगे मेरे हंस ने अकेले जाना है। ये गल्लां बाबा अतर सिंह साहब जी जिन्हों पंथ ने संत कहा, अपने आप नहीं बनया, किन्ने कहा? पंथ ने संत की पदवी जिन्हों दी, कुछ वेख्या ही होऊ तां ही कहा है संत। वो कहते इस तरह कर करके ये जिहड़ी घड़ी आ मरण दी, जिन्हों भुल गई भी मैं कदी मर भी जाना, समझ लो उस बंदे नूं तृष्णा दा रोग लगा। ये तृष्णा वड्डा रोग लगा, मरण मनो। ते तुसी मेरिया धीआं वीर पुछो भी तू तो कहना सा दो निशानियां ते निशानी ते दसी एक। हाजिर हो इधर, तू तो कहंदा सै ते निशानी ते अजे तू केड़ी? मरना भुल चुकिया है। दूसरी निशानियां वेदां में नाम उत्तम। वेद दे अर्थों चार वेद नहीं, जिहड़ी ज्ञान दी किताब होवे, ज्ञान दी पोथी होवे, जिहदे चों ज्ञान मिलदा ओनूं वेद कहिंदे। इन्हां सारे ज्ञान दे ग्रंथां दे विचों सारियां चों उत्तम चीज किहड़ी आ? नाम। वेदां में नाम उत्तम। बोलो, वेद मिंज की दस्सिया है? ज्ञान दे ग्रंथ। वेदां में नाम उत्तम। सारियां चुगलियां सुनदा, निंदा सुनदा, दुई सुनदा, द्वैत दीयां गल्लां बड़ियां कन ला के सुनदा। आखो वाहिगुरू। मगर एक चीज नहीं सुनदा, परले कमरे च चुगली होण दी होवे कन ला के सुनदा है, मगर लागे बैठा कोई नाम जपदा होवे ते उधर ध्यान नहीं देंदा। आखो वाहिगुरू। दूसरा रोग उस बंदे नूं ये लगा है, एक ते तृष्णा लगा है, एक वेदां में नाम उत्तम सो सुने नहीं ते फिरे जो बेतालिया। जे कोई पागल तुरे फिरदे इस तरह बंदा तुरया फिरदा जिन्हों की लगी? पाओ तरला संत विखाता है अज। आखो वाहिगुरू। की आख्या? संत। अज तो बाद ना कहना मैं संत दे दर्शन नहीं कीते। आ सामने जिते चौर हो रहा, ये संतां दे संत ने, पीरां दे पीर ने, गुरुआं दे गुरु ने। इधर नूं ध्यान करके आखो गुरु ग्रंथ साहब जी मैनूं कोई जुगती दसो। सो सुख मोह को संत बतावो, सो सुख मोह को संत बतावो, सो सारी संगत ने नहीं गाया अजे, सारी संगत गाओ, हाथ जोड़ के बेनती। सो सुख मोह को संत बतावो, सो सुख मोह को संत बतावो, सो भाग हुआ गुर संत मिलाया, भाग हुआ गुर संत मिलाया, भाग गुर संत मिलाया। ये संत नूं अज पुछिए। काबल दी संगत सारी रात ये शब्द गाउंदी रही गुरु अर्जन देव साहब दा, ते बेड़ी वाले नूं बेनतियां करदी रही, सजना एक घड़ी ना मिलते तां कलयुग होता। सुनियो भैनों बच्चियो, भी नंगल आण के रात पै गई आ ते लागे ही साडा प्रीतम प्यारा रहिंदा है। केड़ा भला? धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन नेत्रा तस्वीर लियाओ गुरु गोबिंद सिंह साहब दी। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब। लागे प्रीतम रहिंदा है ते रात पै गई आ 30 किलोमीटर ते 30 मील दे उत्ते की पै गई ते रात ते तुर के जा नहीं सकते। जंगल बड़ा सी, बेले बड़े सी। लागे मलाह बैठा सुनदा रहा ते मलाह ने आख्या तुहाडी भाषा मैं समझदा जिहड़ी तुसीं बोलदे हो, ये संत किहनूं कहिंदे जे? ये जिहड़ा तुसीं बार बार शब्द दे विच कहिंदे सो सुख मोको संत बतावो, किहनूं संत कहिंदे जे?
ते गुरु क्या सिखा काबल वालियां ने रोम रोम चों आख्या तेरे कोल ही रहिंदा संतां दा संत, ओदी महिमा किते मेरे नाल गा के वेखियो गुरु के सिखो। हर दो आलम शाह गुर हर दो आलम शाह हक हक आगाह एज दी मंजूर नासरो मनसूर बेकसारा यार कादरे हर कार फजल अल्लाह नूर। जदों ये शब्द कहे ना फजल अल्लाह नूर, ते मलाह भज के जाके ते सिख दे पैरां ते सिर रख के कहंदा मेरा फजल अल्लाह इस धरती ते रहिंदा है। मैं ते सतवें समान ते समझदा सां किनू अल्लाह ताला नू, ते तुसी कह रहे हो इत्थे 30 मील ते रहिंदा है। सिख दा गला भर आया। गुरु क्या सिखा उन्हां दे वड्डे भाग हुंदे गुरु गोबिंद सिंह दा नां लैण ते गला भर आवे। माइयां दे गले भर आउंदे, भरावां दे गले भर आउंदे। अक वाहिगुरू पोतरे दी गल करदियां करदियां गला भर आउंदा है। सिखा वो भागां वाला दिन होऊगा जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह दा नां लएगा ते तेरा गला भर आऊ। अजे तू जाणिया नहीं, गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह दीयां वडियाइयां नूं जाणिया नहीं। जदों क्या फजल अल्लाह नूर गुर गोबिंद सिंह ते सैदा नाम सी उस मलाह दा, जिहड़ा मलाह सी ओहदा नाम की सी सैदा मुसलमान सी। आखो वाहिगुरू। उन्हें कहा वारे वारे जावां सरदारा, एक बार फिर कहो मूँह दे विचों अल्लाह। असीं भी पाकिस्तान में 2 बार गया। आखो वाहिगुरू। ते जिहड़ी दुकान तो किते लस्सी पीए ते उत्थे आखदे ना अल्लाह ताला तेला भरा करे, ते इतना करदे मुसलमान शुक्र है सरदार जी तुहाडे मूँह चों भी अल्लाह निकलिया। आखो वाहिगुरू। ते उन्हां नूं असीं दसदे हां साडी बाणी दे विच कई वार अल्लाह शब्द आया है। कबीर अल्लाह की कर बंदगी, बोलो अल्लाह शब्द किसी का रखवा नहीं गा। शब्द बाणी भाषा सारे संसार की इकट्ठी हुंदी, कोई भी बोल ले। आखो वाहिगुरू। उन्हें कहा फिर एक बार कहो अल्लाह। उन्हें अल्लाह कहा फिर सिख ने फजल अल्लाह नूर गुर गोबिंद सिंह। ते उन्हें कहा अच्छा अल्लाह दे नूर ने, तुसी किसी हैसियत विच कहंदे हो अपने पीर नूं अपने गुरु नूं भी वो अल्लाह दा रूप आ। ते सिख ने नाम सी ओहदा तेजा सिंह। आखो वाहिगुरू। तेजा सिंह ने आख्या वो सज्जणा असीं नहीं पछाणिया। सुन रहे हो जी, असीं नहीं पछाणिया। कहंदे किन्ने पछाणिया? तेरा पीर ही भीखम शाह। सुनिया जे नाम? बोलो ना गुरु किसी कित्थे गया सी ये? पटना साहब। ते जिदन मेरे सरकार दे चरण मस्तक नूं लगे ने ना निक्कियां जिहां दे, ते पुकार उठी सी ओदी रूह। दुनिया दे लोगों जिन्ना अल्लाह नहीं वेख्या, आ गुरु तेग बहादुर महाराज पातशाह दे घर अल्लाह आ गया जे, खुदा आ गया जे, ये मेरा खुदा जे। कहने लगा होर किन्ने कहा? आखो वाहिगुरू। तेजा सिंह नूं सैदा कहंदा होर किन्ने कहा? कहंदा पीर बुद्धू शाह ने कहा ही, पीर भीखम शाह ने कहा ही भी वह खुद खुदा धरती के उत्ते आ गया, उन्होंने असीं मिलने चले हाँ, बेड़ी दे उत्ते सानू पार करते कि सवेरे लै जाऊं। वो ते रात नूं 16 साहब की बाणी पढ़ के सौ गए, ते सारी रात वज गया चौंकड़ा सैदे दा। सो सुख मोह को संत बताओ, सो सुख मोह को संत बताओ, सो अज कह ही जाओ। तृष्णा बूझे मन त्रिपतावो, तृष्णा बूझे मन त्रिपतावो, तृष्णा ध्यान ना सुनियो भाई साहब। 2 तरह की अग लगती, एक दुनियावी अग जिन्नी मर्जी बलदी दे उत्ते पानी भी सुट दीए ते धुआं निकलना शुरू हो जाता, अग का नामो निशान नहीं मिटता। नोट किया जी? की क्या?
अग दे उत्ते पानी पा दईए ते अग ते बुझ जांदी, मगर धुआं निकलता रहिंदा है। इस तरह ही बंदा उत्तों उत्तों कह के मेरी तृष्णा बुझ गई, मगर विचों सोचता रहिंदा है। 4 पैसे दे कोल होण, 10 पैसे दे कोल होण, ये धुआं है। आखो वाहिगुरू। पता लग रहा भैनों बच्चों, किन्ना कह दे भी माया छड़ती, मगर छड्डण तो बाद भी एक सोच रहिंदी कल नूं किते जरूरत पै गई ते की करांगे। ये धुआं निकलना। मगर मेरा बाबा कहंदा जिन्हां दी अग मेरे वाहिगुरू ने बुझाई ना, आखो वाहिगुरू। एक बार सारे बोलियो, बुझ गई अगन। बोलो, फिर बोलो, ना निकसियो धुआं। बाणी जे हैगा ना भाई साहब, बुझ गई अगन। जिदन किसी दी तृष्णा बुझदी है ना, ते फिर उत्थे विचार नहीं उठदे, उत्थे धुआं नहीं निकलदा, शांति आ जांदी। वो सुख मंगद्या मंगद्या सारी रात कटदी। सो सुख मोको संत बतावो, तृष्णा बूझे मन तृप्तावो। मन दे विच सोचदा है भी जिन्हों फजल अल्लाह नूर कहंदे ने, जे ओह अल्लाह है ते मैं इत्थों अरदास करां, बेनती करां, दुआ करां, जे वो सचमुच ही अल्लाह ते मैनूं सवेरे आण के मिले। आखो वाहिगुरू। असीं ते कदी ध्याया ही नहीं ना, असीं कदी उहनूं आवाज़ ही नहीं मारी गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं। जिने तोए ध्यायो तिने पूर्ण प्रताप पायो। चरण सरन गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। असीं ते कदी आवाज़ नहीं मारी उहनूं। वो सची मुची एक मुसलमान फकीर ने, मलाह ने दिलों आवाज मारती। किनू? ना ते लै लो भर के, गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं। ते ओदे कन्न भी चल होर लिखियां, कहंदे कीड़ी आवाज मारे ते हाथी आवाज मारे, ते तुसीं मैनूं दसो कि संगत विचों बैठे भी आवाज पहलों किहदी जाऊ? हाथी दी। रब मारी ते गुरु गोबिंद सिंह कोल पहुंच गई। सवेरे नितनेम करन तो बाद गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह ने 4 बजे गुरु के सिखां नूं आख्या भी 20 घोड़ियां ते काठियां पा लो, एक मेरे घोड़े ते काठी पा लो, सानू कोई याद करदा, आपां नंगल चलना है। आखो वाहिगुरू। रात ते सारी डीकदा रहा भी मैनूं मिलण आउणा है मेरे खुदा ने। दिन दी टिक्की चढ़ गई ते इधरले वाले पास्यों, चढ़दे वाले पास्यों सैयदे ने वेख्या भी बहुत वड्डे घोड़ियां दी फौज आ रही। एक अगे आ रहे जिन्हां दी कलगी दी चमक पै रही आ, ते सोचिया मेरी ये जिंदे, मैं ते खुदा नूं याद करदा सां, किसी रियासत दा राजा आ गया। आखो वाहिगुरू। असीं भी फोटो इस तरह दी बनाई आ भी खुदा दी फोटो ते फटे कपड़ियां च होनी, खुदा दी फोटो ते किसी फकीरां वाला लबेस हो। असीं वेख्या ही नहीं। नमो राज राजे, ये फोटो नहीं बनाई भी वो राजियां दा राजा भी आ, ते वो बादशाह दरवेश, जिथे वो बादशाह उत्थे वो दरवेश भी है। बादशाह वांगू आया, कलगी लगी चमकदी। इधरों आउंदे नूं वेख के कहंदा मैं ते खुदा नूं याद कीता सी। कौन कहंदा भला? सैयदा मला, मैं ते खुदा नूं याद कीता सी। किसी रियासत दा राजा आ गया, चल मेरी जिंदे अज इक्को ही सवारी ढोवांगे, एक ही गाहक लंघा के राजा को थोड़ी जी मजदूरी थोड़ी दे दूगा। जेड़ा सारी रात कहंदा है ना तृष्णा बुझे, गाहक वेख्या ते तृष्णा दे भांबड़ बल पै भी राजे कोलों मजदूरी बहुत मिल जूगी। इधर मेरा साहब घट घट के, पर जे ते तुसी आनंद लै रहे हो ना, सारे बोलो ना, घट घट के अंदर तक पहुंच गई। गुरु गोबिंद सिंह साहब को आवाज किहदी? सैयदे मलाह दी। उतरिया घोड़ी तो आवाज छाल मार के गुरु गोबिंद सिंह साहब, सैयदिया असी पार जाना, सानू पार लैके जा। विच भालिया बड़े चाह चाह दे नाल इतना 2-3 चप्पू मारे बेड़ी नूं ते 10 कदम ते बेड़ी अंदर गई। ते वेखदा की आ, एक पासे सूरज दी चमक पै रही,
एक पासे एक नूरी चेहरे की चमक पै रही, दोवां वल वेख के कहंदा ते सूरज की आह कादी हो सकती। जदों नूरों नूर चेहरा वेख्या ते कहंदा हे मेरिए जिंदे आ गया है ते वो मेरा खुदा जिन्हों मैं सारी रात कहंदा सा सो सुख मोह को संत बतावो, सो सुख मोह को संत बतावो, सो सुख आ वेखो सामने तुसी भी कहो सो सुख मोह को संत बतावो, सो सुख मोह को संत बतावो, सो तृष्णा बूझे मन तृपतावो, तृष्णा बूझे मन तृपतावो, तृष्णा चप्पू मारी जांदा ते सतगुरां दे चेहरे वाल वेखी जांदा, बेड़ी बन्ने नहीं खड़दा दरिया चों। फोटो बन गई है ना, ट्रैक ते है ना सुरत, बेड़ी बन्ने नहीं लाउंदा दरिया चों, भी वेंदा रहां। सतगुरु कहंदे सिद्धिया बेड़ी बन्ने ला सन बड़ा जरूरी काम आ। बेड़ी बन्ने लग गई, छाल मार के गुरु गोबिंद सिंह महाराज उतरे, घोड़े तो सिख उतरे ते अंदर दियां जानन वाले ने पैंदियां भाई दैस नूं कहा की फुरना बनाया सी उन्हें भला, मजदूरी ज्यादा मिल जूगी। पैंदियां ही आवाज मार के दया सिंघा इनू मजदूरी दिओ, किनू भला ना लो सैदे नूं मजदूरी दिओ। ते सैदे नूं कहंदे कर झोली भी मजदूरी दईए। इस तरह झोली कीती ते दया सिंह ने आख्या महाराज किन्नी दा मजदूरी? महाराज कहते 5 सोने दियां मोहरां दे दो, इनू भुख कढ़ दो इहदी। 5 सोने दियां मोहरां दया सिंह रखन लगा ते सैदे मला ने कट्ठी करके झोली आख्या ते बहुत थोड़ी है महाराज, मैं ते आस एदे तो छोटी जी आस थोड़ी रखोगे गुरु तो तुसी। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर, एक खुशी थोड़ी मिलती जिस दिन किसी गुरु वेखदा है, लखा खुशियां देंदा है। ये तो मजदूरी बहुत थोड़ी। महाराज पातशाह कहंदे दया सिंघा 10 मोहरां दे दे। 10 ली झोली अगे कीती सी, 10 पाउण लगे, कहंदे ये भी थोड़ी। आ सुनी जाए हुण, सो सुख मौको संत बतावो, तृष्णा बूझे मन तृप्तावो। 10 भी थोड़े। सरकार ने आख्या 20, 50। जदों 50 ते भी आख्या नहीं महाराज ये ते बहुत थोड़ी मजदूरी आ। महाराज पातशाह कहते खुरजी दे दो सारी। एडी भरी ही ना जी खुरजी, कादी मोहरां दी, सारी दे दो, भुख मटा दो इहदी। खुरजी रखन लगा, कहंदा ये भी थोड़ी, साडे ते सौदे ही बड़े थोड़े ने। आ सरी दे विचों कथा करके आया, जिन्ने बजुर्ग ताश खेडदे खेडदे स्टोर च जांदे ने ना वालमार्ट दे विच, वो लाटो लैण डे हुंदे। साडियां भुखां ते इत्थे खलो गईयां, गुरु वाली भुख कित्थे रह गई? समझ रहे हो जी? अरदास गुरुद्वारे भी जाके ही कहंदे होणगे मेरी लाटो लग जाए। वो आंदा ये भी थोड़ी, आखो वाहिगुरू। महाराज पातशाह ने आख्या फिर की लेना चाहना? खुरजी ते देती, तेरी भुख नहीं निकली? कहंदा ना जी। फिर की चाहना है? आ सुनियो ध्यान, सौदा ना कर लीए। कौन कहंदा? सैदा मला कहंदा सौदा कर लीए। एक सिख ने बांह फड़ के आख्या वो 3 पैसे कमाउण वाला तू मला ते ए दीन दुनिया दा मालक, इहदे नाल तेरा काहदा सौदा? सौदा भी बराबर दिया ना हुंदा। ते महाराज पातशाह कहंदे नहीं, इहनूं दस्सण दिओ, दस भी की सौदा करना ही। आ सुनियो बड़े बड़े सोहणे बचन। सतगुरु तेरी ते हमारी किस जात ना न्यारी, माधो न्यारी मैनूं आंदा वखरी। हे मेरे माधो गुरु गोबिंद सिंह साहब जी, तुसी ते मैं एक ही जात दे बंदे हैं। फिर सिख ने झिड़किया, वो तू मला ए गुरु साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब कहंदे तुसी चुप करो भी। दस भी हुण की फर्क इन्ना, मैं निक्के जे दरिया दा मलाह वां, हुण बोलो, ते तू भवजल दा मलाह है। हाँ दोवें ही बोलो ना गुरु के सिखों को।
मैनू इस तरह लगता फिर तुम सोची पे होंगे भी नहीं नहीं अभी सुननी नहीं था। सुनो ना गुरु के सिखो, मैं निक्की जी नदी का मलाह ते तू भवजल नदी का मलाह है, आप दोनों ही। ते इस तरह ना सौदा कर लीए भी तू इत्थे आया मैं इत्थे लंघाता है, जिदन मैं उत्थे आवां तू मैनू लंघा दी। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह कहने लगे नहीं सैद्या सौदा नहीं तेनू करना आया। आखो वाहिगुरू। महाराज बड़ा चंगा सौदा कर लिया, जिन्नी कि मेरी बुद्धि सी मैं आख्या भी मैं तुहानू नगाता तुसी। ते गुरु गोबिंद सिंह साहब कहंदे भी वेख तू आउणा कल्ले ने, असीं आ 21, तू साडे नगाए 21, तू आउणा कल्ले ने, मैं तेनू कल्ले नू नगावां, सौदा बनदा नहीं। फिर महाराज दसो। महाराज पातशाह ने कापी पेंसिल चुकी ते मूल मंत्र उत्ते लिखिया सैदे दे नाम दे उत्ते, ते आख्या सैदया तू 21 नगाए ने, गुरु नानक ने तेरियां 21 कुलां लंघातियां। ऐसे ना सौदा करो, कदी अरदास दूसरी ना करनी, आ करो सो सुख मोह को संत बताओ, सो सुख मोह को संत बताओ, सो पाओ तरला संत देगे। तृष्णा बूझे मन त्रिपतावो, तृष्णा बूझे मन त्रिपतावो, तृष्णा कल वाले बचना च आपां माया दे, कलम दे, महर मलूक दे सारे वेख लेने। अज सतगुरु पातशाह जी कहंदे आस पवन हस्त असवारी, चोआ चंदन सेज सुंदर नारी, नट नाटक अखारे गाया, तामे मन संतोख ना पाया। इन्हां चों ते मेरे मन नूं तृप्ति नहीं मिली। हुण अज की दसदे, कहंदे मैं तख्त ते बह के वेख्या, बड़ियां बड़ियां सभा च बह के वेख्या, मंडन आ गया जी उत्ते पढ़ो लिया पुत्त, तख्त सभा मंडन दुलीचे, बड़े बड़े चंगे श्रृंगार, बड़े बड़े चंगे तख्तां ते बह के वेख्या, दुलीचियां ते बह के वेख्या, सगल मेवे सुंदर बगीचे, सारे मेवे खा के वेखे, बदाम खा के वेखे, सब कुछ खा के वेख्या, सुंदर बागां च घूम के वेख्या, मगर तृष्णा नहीं बुझी। हे मेरे मालिक कोई सुख दस जिहदे नाल तृष्णा बुझे ते मन तृप्तावो, मन तृप्त हो जाए। महाराज कोई इहो जी जुगती दसो। अगे जाके सरकार ने लिखिया अखेर बिरत, अखेर अखेर हुंदा शिकार करना। एक शिकारियां वाली बिरती हुंदी है, सह मार के खाने, बिल्ले मार के खाने, इस तरह दी चीजां लोकी खांदे। इत्थे महाराज पातशाह कहण दे ओ बिरती भी मैं भोग के वेखी, मैं शिकार भी करके आ गया उत्ते जी। आखो वाहिगुरू। अखेर बिरत राजन की लीला, राजा बन के राज लीला भी कमा के वेखी, शिकार भी करके वेख्या, मन शाबाश उची दस दो, मन नूं तृप्ति नहीं आई, फिर भी भटकदा है। मन न सुहेला पर पंच हिला, मन सुखी नहीं होया, परपंच दे चक्करां च पिया वा। महाराज तुसी किरपा करो मेरे उत्ते, गुरु ग्रंथ साहब जी मैनू कोई जुगती दसो। ते फिर गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी कहंदे तृष्णा बुझाउणी चाहुंदा है। आखो वाहिगुरू। तृष्णा बुझे हर के नाम, बोलो ऐदे नाल बुझदी वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। जप लो भी जप लो प्यारिओ। बुझूगी बुझूगी, गारंटी है, मैं अपने को नहीं कहता, गुरु की गारंटी। वाहिगुरू 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 गुरु 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 नूं पूरा सुनो। गगे दे औंकड़ रारे थले दुलंकड़। गुरु गुरु
बन गया दीवान बन गया, संगत हो गई, मिल साध संगत भज केवल नाम। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जुड़ गई तारा जुड़ गई। एक बार जोड़ लेने दो। अज दास का भी आखिरी दीवान इत्थे। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज सारे दे सिर ते हथ रखो। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ऐसे भाई साहब कीर्तन करके गए तुसी। जिहड़ा तुहाडा साज आ आवाज़ा जिन्हों वजा के हटे हो, इहदे च सुरां हैगियां। बोलो डरो ना, सुरां हैगियां ने ना। जो कल्ला पिया हुंदा उदों क्यों नहीं वजदा जे सुरां इहदे कोल हैगियां ते। कोई थोड़ी पकड़ो, इहदे च इशारा बड़ा वड्डा है। गुरबाणी च लिखिया हम तेरे जंत, जंत मने साज, असीं तेरे साज हैं सारे ही, मगर अपने आप नहीं वज सकते। उसे वाजे के उत्ते जो भाई साहब उंगल रखते सोहरियां सोहनियां सुरां निकलदियां। गुरु क्या सिखा तो वाहिगुरू एवें नहीं कहा, तेरे सिर ते गुरु ने हथ रखिया तां निकलिया ही मूँह चों वाहिगुरू। हथ रखिया ही किसी ने, समर्थ गुरु सिर, गुरु समर्थ ने सिर ते हथ रखिया तां निकलिया है। हम तेरे जंत, वाहिगुरू असी तेरे साज हां। तू वजावण हारा, तू ते असीं अरदास करदे हां सतगुरु भागां वाला एतवार आया। एक बार फिर तरला पाउने हां सतगुरु साडे रख ना उत्ते उंगलां, वाजे पंच शब्द तित घर सुभागे, घर सुभागे कला। जिहड़े घर च तेरी कला आ जाए, पावर आ जाए, उहदे मूँह चों वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। वांझा न रहे, वांझा न रहे कोई। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह की संपूर्णता होंदी है ना, तो नवें पातशाह के श्लोक पढ़ते हैं ध्यान। उत्थे एक बचन पढ़ते, बल छुट के ते बंधन भरे। आउंदा है जी, गुरु कृपा करे कदी किसी का बल ना छुटक जाए ते उन्होंने बंधन किते पै ना जान बंदे नूं। एक हाथी लंघदा सी पानी दे विचों दी, मैं नहीं कहंदा गुरबाणी च लिखिया, हाथी पानी चों दी लंघदा ते पानी बड़ा तेज सी। उन्होंने बल सी भी मैं बहुत तगड़ा, मैनू कौन, मैनू काहदा हू केयर। पानी दे विचों दी उन्हें लंघना ते किसी सियाणे ने रोज कहना गज, उहदा नाम गज लिखिया उत्ते, गज मने हाथी। गज इन्ने तेज पानी दे विचों दी लंघदा है, किसी गुरु पीर नूं ध्या लिया कर, पानी च वंड लगा। तुहानूं भी मैं कहना जिंदगी कट्टण लगे किसी गुरु पीर नूं, बोलो ना। जिंदगी दा पानी बहुत तेज आ, कई रुड़ गए ने। नोट करियो मेरियां धीआं वीर गुरसिख, इस जिंदगी दे वहण दे विच कई रुड़े ने
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਵੇਰੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਰਿੰਗ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰੋ ਦੁਕਾਲੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਸਦਾ ਅਭੰਗੰਗ ਬਭੂਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ। ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਉਹ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਲੂ, ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਅਸਥੂਲ ਮੈਂ, ਆਕਾਰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਪਰਵਾਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਤੰਦੂਆ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਸੁੱਟ ਲਈਆਂ। ਕਿਹਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਮਝਿਓ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੋ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹਾਥੀ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭਾਤੇ। ਉੱਥੇ ਫਕੀਰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਗਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੇਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰਾ ਤੋਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੋ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਆਇਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਹਾਥੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਤੰਦੂਆ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਤਾਰਾਂ ਪਾ ਲੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਧੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਮਝਿਆ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰ ਕਿਤੇ ਤਾਰਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲਿਆ ਕਰ। ਆਂਦਾ ਅਜੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਖਿੱਚਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲਈ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੁੰਡੀ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਾਰਾ। ਬੋਲੋ, ਅਬ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇ ਗੱਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਏ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਉੱਠੀ ਉੱਥੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲ ਹੋਆ, ਇੰਨੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੰਦੂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਅਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ। ਤੇ ਧੀਏ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਿਆ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਦਸਤਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਤੇ ਘੇਰ ਨਾ ਲੈਣ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੀ ਗਿਆ? ਬੋਲੋ ਗੁਰੂ ਕੇ। ਆ ਲਾਲ ਰੁਮਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਵੇਖੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਬੱਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝੋ। ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰੀਏ। ਬੋਲੋ ਭਲਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਫੇਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਏਗਾ, ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਪਰੇਗਾ। ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰੀਏ, ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ। ਕੰਮ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਅਮਰਾਪੁਰ ਵਾਸਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਗਿਆ ਬਹੋਰੇ ਬਿੱਤ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲੋਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਰੱਬ ਨੂੰ,
ਤੇ ਅੱਜ ਤਰਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਤਰਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਸੁਖ ਮੋਹ ਕੋ ਸੰਤ ਬਤਾਵੋ, ਸੋ ਸੁਖ ਮੋਹ ਕੋ ਸੰਤ ਬਤਾਵੋ, ਸੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਸੰਤ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਇਓ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਅੱਗੇ ਪੜਿਓ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤਨ ਸੱਚ ਕਹਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਤਨ ਮੀਨਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਸੱਚ ਕਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝ ਜਾਏ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਇਹੋ ਆਨੰਦ ਲਹਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਆਖਿਆ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਏ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਏ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਏ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਬੋਲੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਤਿਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ, ਤਿਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਭੇਟਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਚ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣਦਿਆਂ 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 ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਏ। ਸੰਗਤ ਕੀਰਤਨ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਧਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਆ ਗਿਆ, ਸੋਈ ਸੋਹੇਲਾ। ਉੱਤੇ ਪੜੋ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਧਨ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਨਿਤਨੇਮ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਬਾਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਲਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੰਘਾ ਦੇਣਾ। ਲੰਘਦਿਆਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਆ ਨਾ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦੇ? ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚੱਲ ਜਾਓ 2 ਮਿੰਟ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੱਥੇ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਖਿਓ ਨਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੱਥੇ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਸੰਘਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹਰੀ ਭਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਲੀ ਛਾਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਨੀਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੋਗੀ, ਪਨੀਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲਦੀ ਤੇ ਲਹਿ ਲਹਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖੇਤ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਾਜ ਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫੜੋਗੇ, ਫੜ ਲੋਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਣੇ ਸੰਘਣੇ ਫਸ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ 50 ਆਏ, ਮੇਰੇ ਘਰ 40 ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਘਰ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਨੀਰੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਪਨੀਰੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤ 'ਚ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ, ਪਨੀਰੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਜਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ? ਪੰਜੀਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋ। ਪੰਜੀਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲੀ ਵਿਰਲੀ ਕਰਕੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ, ਹੱਸਦੇ ਸਾਂ, ਖੇਡਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਉਸ ਵੱਖਰੇਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਆ। ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ 2 ਦਾਣੇ ਬਣਨਗੇ, ਬੂਟਾ ਬਣੂਗਾ। ਐਡਾ ਕੁ ਬੂਟਾ ਵੇਂਦਿਆਂ ਵੇਂਦਿਆਂ ਐਡਾ ਬੂਟਾ ਬਣੂ। ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਆੜੇ ਆੜੇ ਬੂਟੇ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਏ? ਉਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਜਰ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਪਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਕੜ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁੰਜਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦੀਦਾ ਬੂਟਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਲਈ, ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਲਈ ਵੀ ਐਸ ਜਿਸ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਇੱਧਰੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗੂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਊਗਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਿਓ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਮੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।